डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Hello everyone, I hope you all are doing well. So be positive, stay positive. And today's our session is block number 3, unit number 1, which is depreciation of accounting. Before I start today's lecture, I introduce myself. I am Neelam Pandya, Assistant Professor, Vocational Professional Department, Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University welcomes you in a Chaitanya Studio online lecture series BBA course, paper code number 102, which is Basics of Accounting. And today we are going to discuss block number 3, unit number 1, which is depreciation of accounting. So let us start with a basic introductory part. Learning objectives. So after learning this unit, you will be able to understand the concept of depreciation, various methods of recording depreciation, causes of depreciation, the features of accounting standard 6, objectives of depreciation, calculation of depreciation, and changing the method for changing the depreciation. Understood? So this is the introductory part. Depreciation is one of the most important component of income determination. In order to ascertain the true profit for the business, it is necessary the depreciation is charged on the fixed asset of the business. एज वी ऑल नो कि डेप्रिसिएशन किस पे काउंट होता है, ऑलवेज फिक्स असेट पे. सपोज कोई माइक्रो लेवल या मैक्रो लेवल का बिजनेस हमें स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें क्या परचेस करना पड़ेगा, फिक्स असेट्स. तो ये जो फिक्स असेट है उस पे डेप्रिसिएशन लगता है ईयर बाय ईयर. एंड बहुत सारी मेथड्स है 5 या 6 जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि डेप्रिसिएशन फिक्स असेट पे कैसे काउंट करना है स्टेप बाय स्टेप. तो यहाँ पे लिखा है कि फिक्स असेट्स आर acquired to be utilized in the process of providing goods and services to the customer. They are one-time investment. And needs to only maintenance. Next, again यहाँ पे लिखा है कि value of fixed assets diminish with the passage of the time and its utilization over the period. The decrease in the value of fixed asset is taken care of in accounting system by the way of changing depreciation of the assets. So this is the introduction of depreciation कि basic depreciation word क्या है और किस पे लगता है. तो जैसे हमने जाना कि जो भी फिक्स्ड असेट है, लाइक बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और सारी क्या है, फिक्स असेट. तो फिक्स असेट्स पे हमें डेप्रिसिएशन काउंट करना है. सो अगेन यहाँ पे डेफिनेशन क्लियरली बताई है कि डेप्रिसिएशन इज द मेजर ऑफ वियरिंग आउट कंजप्शन और लॉस इन वैल्यू ऑफ असेट्स दैट आर डेप्रिसिएबल ड्यू टू यूज टाइम पीरियड एंड ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड मार्केट चेंज. तो दो तरह से डेप्रिसिएशन लगता है. एक तो चीज़ जो है ईयर बाय ईयर, सपोज आपने सोफ़ा परचेस किया, टेबल परचेस किया, चेयर परचेस किया, तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है. सपोज 2022 अभी 2022 चल रहा है, तो उसमें हमने ये सारा टेबल, फर्नीचर, चेयर सब परचेस किया, तो ईयर बाय ईयर उस पर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन. चीज़ों को टाइम यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यू टू यूज टाइम पीरियड. जैसे जैसे टाइम पीरियड चला जाता है वैसे वैसे उस पर डेप्रिसिएशन लगता है. और दूसरा, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो मार्केट चेंजेस के कारण भी ये चीज़ क्या है, ओल्ड हो जाती है और उस पर डेप्रिसिएशन लगता है. सपोज विंडोज़ 5 है तो विंडोज़ 8 आया, फिर विंडोज़ 11 आया, तो ईयर बाय ईयर उस पर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन.
The important characteristics of depreciation are noted below. Depreciation is charged on the fixed assets and tangible assets only. Depreciation refers to a permanent, gradual and continuous decrease in the utility value of fixed asset, and it continues till the end of the useful life of assets. Depreciation is charged against the profit for a particular accounting period. Depreciation is always computed in a systematic and rational manner. जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी मेथड है डेप्रिसिएशन काउंट करने के लिए ऑन अ फिक्स एसेट्स. तो ये जो मेथड है उसमें है स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और बहुत सारी है. टोटल 6 या 7 मेथड्स है, वो आगे हम देखेंगे. बट यहाँ पे जो लिखा है कि डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कंप्यूटेड इन अ सिस्टमैटिक एंड रेशनल मैनर सिंस इट इज नॉट अ सडन लॉस. Causes of depreciation. The depreciation may broadly be divided into two causes. Two main causes है कि depreciation क्यों होता है. उसके दो पार्ट है, उसमें दो पार्ट में डिवाइड किया है. तो एक है इंटरनल कॉजेज एंड दूसरा है एक्सटर्नल कॉजेज. इंटरनल कॉज क्या है? तो इंटरनल चीज़ों में यहाँ पे लिखा है वियर एंड टीयर. वियर एंड टीयर मतलब क्या कि सपोज आपने मोबाइल खरीदा 10,000 में, आज की डेट में आपने मोबाइल खरीदा, तो आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 12 मंथ ये मोबाइल की जो टोटल कॉस्ट है वो हो जाएगी 8,000 या 7,000 एज पर मार्केट प्राइस. बिकॉज जो नई नई चीज़ें मार्केट में इन्वेंट होती रहती है, सपोज सैमसंग का A23 का मॉडल है, फिर 2 साल के बाद आएगा A40 या A45 वॉट एवर, फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर नया मॉडल मार्केट में आता है तो जो ओल्ड मॉडल है उसकी प्राइस रिड्यूस होती है. तो जो प्राइस रिड्यूस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन. दूसरा है डिप्लेशन. डिप्लेशन सपोज आपने कार खरीदी, कार के धीरे धीरे कार की जो एसेसरीज है, कार के टायर है, वो सारे यूज़ होते हैं, तो उसको टाइम की मार लगती है. तो समय के हिसाब से क्या होता है कि ये उस पर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो यहाँ पे काउंट करना है. दूसरा वैसे ही कॉजेज दिया है एक्सटर्नल कॉज. उसमें है ऑब्सेलेंस, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट्स में क्या होता है कि नेचुरल कैलामिटी लाइक कोई भी प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, कोई ऑफिस खरीदी है, तो सपोज अर्थक्वेक आया या फ्लड आया या कुछ भी नेचुरल कैलामिटीज हुई तो उसमें पूरी ऑफिस बर्बाद हो गई, ऑफिस का फर्नीचर बर्बाद हो गया, तो वो सारे आएगा एक्सटर्नल कॉजेज. पैसेज ऑफ टाइम. पैसेज ऑफ टाइम में वही मैंने जो समय का चक्र बताया कि 10 साल पहले कोई चीज़ खरीदी हो और तो आफ्टर 10 ईयर्स उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू है वो और नेचुरली वो रिड्यूस हो जाएगी, तो उस पर क्या होगा? डेप्रिसिएशन लगेगा. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन. फर्स्ट इज अ इंटरनल एंड सेकंड इज अ एक्सटर्नल. नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन काउंट करने का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो यहाँ पे लिखा है कि इन ऑर्डर टू कीप द ओनर्स कैपिटल इंटैक्ट द रिकवरी टू द कॉस्ट ऑकर्ड ऑन द फिक्स एसेट मेड ओवर द यूजफुल टाइम. In the event of retirement of original assets, the cop up with the replacement cost. To determine the actual cost of production by considering depreciation as also one of the component of the cost. To determine the actual profit for the year. To find out the actual financial position through the balance sheet. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है. उसमें सबसे लास्ट, अगेन आई रिपीट, जो सबसे लास्ट है टू फाइंड आउट द एक्चुअल पोजीशन थ्रू द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में हमें क्या बताना है? सही सही चीज़ें बतानी है कि कंपनी की करंट डेट में मार्केट वैल्यू क्या है. तो अगर हमने बैलेंस शीट प्रॉपर मेंटेन की होगी, उसमें सारी जो फिक्स एसेट्स है उसका डेप्रिसिएशन वो सब डिडक्ट किया होगा करंट वैल्यू के हिसाब से, तो हमें कंपनी की वर्तमान परिस्थिति ध्यान में आएगी. तो डेप्रिसिएशन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? तो अगर डेप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर या तो स्ट्रेट लाइन मेथड या तो रिटर्न डाउन मेथड, कोई भी मेथड से डेप्रिसिएशन काउंट करो, बट जो बैलेंस शीट है हमारा फाइनल अकाउंट्स है, ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट और फाइनल अकाउंट जो है उसमें क्लियरली बताना चाहिए. क्यों बताना चाहिए? टू फाइंड आउट द एक्चुअल पोजीशन
through the balance sheet. Now, methods of changing depreciation. Previously, we are already discussed about the objectives to count a depreciation. Depreciation क्यों count करना चाहिए, उसके objectives के बारे में हमने discuss किया. Now we are discussing about the methods of charging depreciation. Depreciation charge करने की कौन कौन सी method है, as I already discussed. First, which is a straight line method, also known as a original cost method or fixed installment method. Second, which is a written down value method or diminishing balance method, and also known as reducing installment method. Third, which is a annuity method. Fourth, which is a sinking fund method, and fifth, which is a insurance policy method, and last, which is a revaluation method. So these six are the different types to calculate the depreciation in a different way. तो हम जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकंड मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड. ये दोनों पॉपुलर मेथड है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में मेजरली कॉमनली सब रिकॉर्ड रखते हैं फाइनल अकाउंट्स में. तो ये दोनों पे हम थोड़ी हाईलाइट से और थोड़ा उसे डिटेल में जानेंगे. फर्स्ट, विच इज अ स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, विच इज ऑल्सो नोन एज अ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. इन दिस मेथड द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द असेट्स इज कैलकुलेटेड, द टोटल कॉस्ट ऑफ द असेट्स, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट इन ब्रिंगिंग द असेट्स to its working condition, and it's taken scrap value at the end of its expected that deducted from it. मीन्स इसकी एक फॉर्मूला है कि टोटल कॉस्ट जो है फिर माइनस करना है स्क्रैप वैल्यू और नंबर ऑफ इयर्स. ये फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन मेथड की. सपोज कॉस्ट है 1 लाख कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू है 1000 एंड जो नंबर ऑफ इयर्स है वो है 10. तो ये डिवाइड होके कैलकुलेशन होगा. मीन्स आगे हम डिटेल में जानेंगे. ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया जस्ट आपको समझ में आया कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे काउंट करना है. तो टोटल कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ इयर्स कि कितने साल से ये प्रॉपर्टी खरीदी है उसे डिवाइड करना है, तो हमें मिलेगा एक्चुअल डेप्रिसिएशन. सो यहाँ पे लिखा है कि हियर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन remains the same from year to year. This method is known as a straight line method because in the graph the annual depreciation is drawn, it would be a straight line. Next, so here the example is given that how we calculated the depreciation from straight line method. Straight line method से depreciation कैसे count होगा, और जो पर्टिकुलर सपोज हमने फर्नीचर परचेज किया है वर्थ ₹5 लाख, तो उसमें स्क्रैप वैल्यू है 5000 और 10 साल पहले ये फर्नीचर खरीदा था. तो एज पर द फॉर्मूला दैट कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. तो ये जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे उसके बाद हमें क्या मिलेगा, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. और स्ट्रेट लाइन मेथड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप 10 साल के लिए भी फर्नीचर अकाउंट बनाओ तो डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो हर एक साल सेम रहती है. मतलब डेप्रिसिएशन की जो रकम है, अमाउंट है, वो उसमें चेंज नहीं होता. मतलब 5000, सपोज 5000 इज डेप्रिसिएशन, ओके, आफ्टर कैलकुलेटिंग हमें 5000 मिला, तो ये 5000 ईयर बाय ईयर सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता. तो लेट्स हैव अ लुक ऑन अ एग्जाम्पल. यहाँ पे लिखा है कि मिस्टर अद्विक परचेज अ मशीनरी ऑन 1 जनवरी 91 फॉर ₹21,000. ठीक है, 21,000 में उसने मशीनरी परचेज की 91 में.
life of machinery was estimated to be 10 years. At the end of life it would sold for rupees 1000 only. Means ये उसकी scrap value है. ये जो 1000 है वो है scrap value. You are required to calculate the amount of annual depreciation according to straight line method and prepare the machinery account for the first 3 years. First 3 years के लिए ही account बनाना है, but जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 10 इयर्स के लिए है. तो अगेन मैंने जो रिपीट किया कि जो फॉर्मूला है कि टोटल अमाउंट ऑफ मशीनरी माइनस स्क्रैप वैल्यू अबाउट एंड अपॉन द नंबर ऑफ इयर्स. सी द फॉर्मूला. एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ अ सेल्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स. तो अगेन 21,000 यहाँ पे दिया है माइनस 1000 अपॉन 10 जो है वो है ईयर्स. 10 ईयर्स. ये 21,000 क्या है? कॉस्ट है. 21,000 इज कॉस्ट. 1000 इज स्क्रैप वैल्यू. 21,000 is cost, 1000 is scrap value and 10 is a 10 years. तो यहाँ पे आएगा 20,000 because 21,000 minus 1,000. So क्या आएगा 10 और अपॉन 10 years. तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2000. तो ये जो 2000 है वो क्या है? एनुअल डेप्रिसिएशन, जो हर एक साल सेम रहने वाला है. ओके, गॉट इट. नाउ दिस इज अ मशीनरी अकाउंट. मशीनरी अकाउंट यहाँ पे दिया है. जो 2000 डेप्रिसिएशन आया उस पर से यहाँ पे अकाउंट बनाया कि टू बैंक अकाउंट 21,000 देन डेप्रिसिएशन यहाँ पे 2000 जो हमने अभी काउंट किया था वो. फिर बाय बैलेंस 21 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 90,000. तो ओवरऑल हमारा दोनों साइड बैलेंस हो गया 21,000. तो मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे करना है. तो यहाँ पे पहले हम डेट लिखेंगे, फिर आएगा पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. यहाँ पे आएगा डेबिट साइड और यहाँ पे आएगा अगेन डेट, देन आएगा पर्टिकुलर्स एंड फिर आएगा अमाउंट. ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड. बोथ साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. तो ये हमारा हो गया मशीनरी अकाउंट. ओके. तो जैसे एग्जाम्पल में बताया था कि फर्स्ट जनवरी 18 को मशीनरी परचेज की है. तो यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 21,000 की मशीनरी परचेज की है. फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा 31 मार्च 19. ओके. तो यहाँ पे आएगा बाय डेप्रिसिएशन 2000. तो ये 2000 कैसे आया? जो मैंने आपको आगे की स्लाइड में बताया कि ये जो एनुअल डेप्रिसिएशन हमने कैसे काउंट किया, 21,000 minus 1,000 upon 10. तो आफ्टर दैट वी गेट 2,000 विच इज डेप्रिसिएशन. तो ये मैंने आपको बताया. तो यहाँ पे इसलिए 2000 लिखा है. फिर ये दोनों का डिफरेंस है वो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा 90,000. ओके, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन 21,000 एंड 2000 इज 19,000. ओके. सो बोथ साइड बैलेंस इज 21,000. तो यहाँ पे हमारा जो एक साल का जो अकाउंट है वो क्लोज हो गया. अब ये जो बैलेंस है उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करना है. तो आगे कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे? तो अगेन यहाँ पे आएगा 1 अप्रैल 2019, क्योंकि 31 मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस है, 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस 90,000, ये यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना है बाय बैलेंस करके. तो यहाँ पे आएगा अगेन 90,000. फिर यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन अगेन 2000 क्यों आएगा? बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन मेथड है.
स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर एक साल के लिए सेम रहता है. जैसे हमने ये कैलकुलेशन किया है कि 10 साल के लिए 2,000 होगा एवरी ईयर 2,000 ही डेप्रिसिएशन काटो. तो ये फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे आएगा 2000 अगेन. फिर अगेन डिफरेंस बिटवीन 19 एंड 2, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बाय बैलेंस 17,000 आ गया. तो दोनों साइड अगेन बैलेंस कैसा कितना हो गया 19. अंडरस्टूड. नाउ ये बैलेंस अगेन फिर कैरी फॉरवर्ड होगा 20 के लिए. 1 अप्रैल 20 के लिए अगेन कैरी फॉरवर्ड होगा यहाँ पे 70,000. तो ऐसे ये साल बाय साल जितने भी साल के लिए आपको बोला गया है कि मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करो, तो आपको जो भी साल से बोला है, यहाँ पे बोला है फॉर अ फर्स्ट 3 इयर्स, तो हमें 3 साल तक बनाना है, फिर अकाउंट क्लोज कर देना है. तो ये आपको समझ में आ गया. ओके तो ये है स्ट्रेट लाइन मेथड. नाउ वी आर गोइंग टू रिटर्न डाउन मेथड. कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या है, उसमें डेप्रिसिएशन कैसे काउंट करना है वो हम आगे देखेंगे. So now first method is completed, which is straight line method, and now we switch to written down value method. तो अगेन इसकी एक अलग फॉर्मूला है, अलग फॉर्मूला से अलग तरह से डेप्रिसिएशन काउंट करना है. तो यहाँ पे लिखा है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड is also known as diminishing balance method or reducing installment method. Under this method, the value of assets is depreciated or reduced at the fixed percentage, which is calculated on the closing balance of the assets every year. Means यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पर्टिकुलर जितने साल के लिए प्रॉपर्टी खरीदी है उस पे हम काउंट करते थे. यहाँ पे परसेंटेज दिए होंगे कि सपोज द रेट ऑफ परसेंटेज इज 10, रेट ऑफ परसेंटेज इज 12. तो जो भी परसेंटेज दिए है उस पे हमें डेप्रिसिएशन काउंट करना है. तो यहाँ पे अगेन लिखा है कि अनलाइक द स्ट्रेट लाइन मेथड, हियर द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन द सेम, बट हियर the depreciation is variable each and every year. So this is the basic difference between straight line method and written down value method. वहाँ पे डेप्रिसिएशन में वेरिएशन नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा. यहाँ पे वेरिएशन आएगा जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा, जिस साल का क्लोजिंग बैलेंस जितना है उसके जो परसेंटेज दिए हैं उस पे हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड काउंट करनी है. So again the example is given. Mr. Medhans purchased a merchant purchased a plant and machinery costing 25,000 1st January 2018. यहाँ पे डेट बहुत मैटर करती है. आपको डेट देखनी है और डेट के हिसाब से ही पूरा फाइनेंशियल ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा. तो डेट इज ऑलवेज मैटर्स. 1 जनवरी 2018, तो इसका क्लोजिंग डेट कौन सा आएगा 31 दिसंबर 2018. फिर ओपनिंग बैलेंस आएगा 1 जनवरी 2019 एंड क्लोजिंग बैलेंस आएगा 31 दिसंबर 2019. तो जो ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है उसकी डेट बहुत ही मैटर करनी है. सो जो आपको जो भी एग्जाम्पल दिया है उसकी डेट आपको अच्छे से देखनी है और वहाँ से ही हमारा ओपनिंग बैलेंस या हमारा जो ईयर है यहाँ से ही शुरू होगा. आइदर वो 1 जनवरी होगी, आइदर 1 अप्रैल होगा. अगर 1 अप्रैल दिया है तो उसका क्लोजिंग ईयर कौन सा होगा 31 मार्च, और अगर 1 जनवरी है तो क्लोजिंग आएगा 31 दिसंबर. सिंपल. तो यहाँ पे दिया है कि रेट इफ 20% जो है वो रेट है. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑलवेज परसेंटेज पे ही काउंट होती है. तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड शो द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर. यहाँ पे अगेन बताया कि 3 साल के लिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो. सो दिस इज अ सॉल्यूशन. सो दिस कैलकुलेशन पार्ट is most important.
आपको यही चीज देखनी है कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसा होता है, वो अगर आपको आ जाए, फिर लेजर पोस्टिंग तो एकदम सिंपल है, लेजर पोस्टिंग आपको इजीली आ जाएगी, बट जो कैलकुलेशन है वो केयरफुली आपको करना है। और डिफरेंस आपको समझना है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये डिफरेंस आपने अगर केयरफुली देख लिया तो इजीली आप इसके सम्स कर पाओगे, विच इज एग्जाम ओरिएंटेड। फॉर्मूला और इक्वेशन फॉर द अबोव कैलकुलेशन। फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना है, 25,000 इंटू 20/100, क्योंकि पूरे एक साल के लिए है। तो अगर आप 20/100 करोगे तो यहाँ पे आएगा कितना, 5,000। सो 5,000 इज आवर फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन। फिर अगेन रिटर्न डाउन वैल्यू। नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पहले साल उसकी अमाउंट थी 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 20%, तो हमने 25,000 इंटू 20/100 किया, तो हमें जो डेप्रिसिएशन मिला वो था 5,000। ओके, नाउ वी आर कैलकुलेट फॉर द सेकंड ईयर। अगर हम सेकंड ईयर के लिए कैलकुलेट करने जाते हैं तो तब हमें रिटर्न डाउन वैल्यू की मेथड के अनुसार क्या हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पे 5,000 जो डेप्रिसिएशन आया फर्स्ट ईयर का, उसे माइनस करना है कॉस्ट में से। सो 25 माइनस 5, 25 माइनस 5 आप करोगे और उसका 20% करना है, तो ये आएगा 4,000, विच इज अवर डेप्रिसिएशन फॉर द सेकंड ईयर। नाउ थर्ड ईयर के लिए अगेन आपको क्या करना है कि ये जो कॉस्ट है वो तो 25 ही है, 25 में से ये 4 माइनस होगा और 5 भी माइनस होगा, फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सेकंड ईयर के लिए होगा 20,000 इंटू 10/100। तो यहाँ पे आएगा 4,000, 20,000 का 20%, तो 4,000। नाउ यहाँ पे अगेन हो जाएगा 20 माइनस 4 मीन्स आ जाएगा 16,000 का 20%। तो ये 16,000 कैसे आया, जो सेकंड ईयर की कॉस्ट है 20,000 माइनस 4,000, 16 इंटू 20 करोगे तो यहाँ पे आएगा, ये दो शून्य निकल जाएंगे, 3,200 विच इज डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर। सो रिटर्न डाउन वैल्यू में ये कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ चुका होगा, पर फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो फर्स्ट ईयर की कॉस्ट है उसका 20% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसमें आएगा 5,000। फिर सेकंड ईयर के लिए कॉस्ट क्या होगी, तो 25 माइनस 5, तो 20 का 20%। और थर्ड ईयर के लिए अगेन 20 जो है वो हमारी कॉस्ट है, तो 20 माइनस 4, 16 का 20%, तो अगेन आएगा 3,200। So 3,200 which is the third year depreciation. Now see the solution. This is the solution given. जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड में बताया कि ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है, ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये प्लांट मशीनरी अकाउंट है, उसका ओपनिंग बैलेंस दिया है 25, ये है डेट, ये है पर्टिकुलर, ओके। तो और यहाँ पे आएगी अमाउंट। तो वैसे ही मैं कैलकुलेशन आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। तो अगेन यहाँ पे डेट आएगी, ओके, डेबिट साइड, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डेट
पर्टिकुलर देन अमाउंट. ओके, तो ये हमारी डेबिट साइड कंप्लीट हो गई. फिर अगेन यहाँ पे आएगा डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. ओके, सो ये क्या कौन सी साइड है? क्रेडिट. तो जैसे हमारा एग्जाम्पल था कि सबसे पहले 25,000 में प्लांट एंड मशीनरी परचेज की. कौन सी डेट में की? 1 जनवरी 2018. 1 जनवरी 2018. उसमें यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस. बाय बैलेंस आया 25. फिर यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन आया उसका, डेप्रिसिएशन इज 5,000. 5,000 कैसे आया? जो कैलकुलेशन मैंने बताया कि 25,000 इंटू 20 अपॉन 100. ओके, तो यहाँ पे 5,000 डेप्रिसिएशन. फिर यहाँ पे आएगा बैलेंस, बाय बैलेंस. तो डिफरेंस बिटवीन 25,000 एंड 5,000, डिफरेंस इज 20,000. तो ये जो 20,000 है वो हमारा नेक्स्ट ईयर का बैलेंस है. अंडरस्टूड? अगेन आई रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंशन द प्रॉपर डेट, then opening balance, then calculative depreciation at credit side, then difference which is balance which is carry forward for the next year. So now this balance is carry forward to the next year which is 1st January 2019. तो यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा बाय बैलेंस. ओके, अगेन आएगा 20,000. यहाँ पे आएगा 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन एज पर रिटर्न डाउन वैल्यू. तो नाउ यहाँ पे जो 20,000 है विच इज अवर प्रिंसिपल अमाउंट, 20,000 का 20%, तो कितना आएगा? 4,000. 20,000 into 20 upon 100. So finally we get 4,000 at a depreciation amount. Now difference between 20 and 4. Difference between 20 and 4. तो बैलेंस कितना आएगा? 16. And both side आ जाएगा 20. ओके, देन अगेन अगर आपको 2020 के लिए फिर से आपको कैलकुलेशन करनी है तो इस तरह से ये जो 16,000 बैलेंस है वो हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस फॉर 2020 विच इज 16,000. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन 16,000. 16,000 into 20 upon 100. So now finally you get 3,200 एंड उस पर डेप्रिसिएशन काउंट होके दोनों साइड अकाउंट क्लोज करना है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से हमने प्रेजेंटेशन उसका देखा और डिफरेंस भी जाना कि स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर डेप्रिसिएशन काउंट करना है तो फिक्स एसेट्स पे कैसे होगा, और मशीनरी अकाउंट में अगर रिटर्न डाउन वैल्यू दी है तो रिटर्न डाउन वैल्यू से कैसे हम डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे. नाउ यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज दिए हैं कि एमसीक्यूज हम देखेंगे कि ग्रेजुअल डिक्रीज लॉस वैल्यू ऑफ ड्यू टू इट्स यूसेज. तो ऑप्शन दिया है डेप्रिसिएशन, असेट्स एंड डिमोलिशन. तो इसका करेक्ट आंसर है डेप्रिसिएशन. सेकंड दिया है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द ब्लैंक असेट्स ओनली. कौन सी ऐसी असेट्स है कि उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है? तो फिक्स एंड टेंजिबल, करंट एंड इनटेंजिबल. तो इनटेंजिबल तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो गुडविल है, वो सब आएगा, तो गुडविल पे तो डेप्रिसिएशन काउंट होता नहीं है. करंट एसेट्स पे भी काउंट नहीं होता है. तो हमारा सही जवाब क्या है?
फिक्स एंड टेंजिबल असेट्स, जो फिक्स है और जो टेंजिबल है उस पे ही डेप्रिसिएशन काउंट होगा. नेक्स्ट, some assets that decline in the value of proportionate the quantum of production or use. For the example, mines, quarry, etc. It is known as depletion. The cost of in the blank includes price, freight or handling charges, legal charges, installation charges or transfer charges, sale tax, insurance, ट्रांजिट एस. तो ये सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, मतलब ओवरऑल क्या कहा गया है कि ये जो है फ्रेट है, हैंडलिंग चार्जेस है, लीगल चार्जेस है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है, ट्रांसफ़र चार्जेस है, सेल टैक्स है, इंश्योरेंस है. तो ये क्या है, ये असेट्स है या डेप्रिसिएशन. तो इट्स काइंड ऑफ असेट्स, हमारे लिए असेट्स है. ये अगेन सारे एग्जाम्पल दिए हैं. ये एक अच्छा है. एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 बेसिक्स फॉर प्रोवाइडिंग इन द ब्लैंक मस्ट बी कंसिस्टेंसी. तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो किससे बिलोंग करता है, डेप्रिसिएशन. आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू में आता ही है कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 विच थिंग्स आर टू बी कैलकुलेटेड. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर द एग्जाम पर्पज. As per the accounting standard 6, in the blank must be consistently any change to be collected and disclosed. The answer is depreciation. Some important terms दिए हैं कि accumulated depreciation क्या है, assets क्या है, book value क्या है, depreciation क्या है, fixed asset क्या है. तो ये जो सारे जो हमारी जो SLM दी है पेपर नंबर 102, उसकी जो SLM है उसे प्रॉपरली रीड करो. उसमें ये सारी चीज़ें दी है कि MCQ तो किस किस टाइप के MCQs आएंगे, किस किस टाइप के जो टर्म्स है कि डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेफिनेशन ऑफ असेट, एक्सप्लेन द वर्ड. तो ये सारी चीज़ें आपको SLM में देख के अच्छे से पढ़ना है. तो अगर ये डेप्रिसिएशन वाला करोगे, फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट, ये सारे प्रैक्टिकल पोर्शन करोगे तो 102 में आप अच्छे स्कोर कर पाओगे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. हैव अ ग्रेट टाइम. थैंक यू.